अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगन्दलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 13th chapter. The name of the chapter is Dhritarashtra Quits Home, and we are reading from verse number 26. गतस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तिबन्धनः अविज्ञाते गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृत। गतस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तिबन्धनः अविज्ञाते गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृत। So, the translation, he is called undisturbed who goes to an unknown remote place and freed from all obligations, quits his material body when it has become useless. So he says, Gataswarthamimam deham virakto mukti bandhanaha. You know, virakto means indifferent. You know, virakti का मतलब होता है indifference. मुक्त बंधना. So it actually what it can be freed from all bandhan. ना एंड एंड ये जो बॉडी है ये सारे बंधनों से मुक्त कर सकती है, बट अविज्ञात गतिर जहियात, है ना। अविज्ञात, अविज्ञात का क्या मतलब होता है? अननोन डेस्टिनेशन। अविज्ञात गतिर जहियात सवे धीरे उदाहरत, है ना। ट्रांसलेशन में ये बोल रहे हैं, विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, he is called undisturbed who goes to an unknown remote place and freed from all obligation, quits his material body when it has become useless. So the quickly context is, Vidur came back from returns to Hastinapur from pilgrimage. He started conversation. So obviously he was welcomed in Hastinapur. Then he started doing conversation. There was a conversation between Yudhishthir and Vidur, है ना। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं हाउ वाज योर ट्रेवल्स एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। विदुरा सब कुछ बताते हैं उनको, सिर्फ एक चीज नहीं बताते हैं, दैट कृष्णा हैज लेफ्ट एंड यदुस हैव डाइड। ही डिडंट टेल हिम। एंड देन Vidura stays in the palace
between verse 14 and 17, Vidura decided to stay in the palace only for the benefit of Dhritarashtra, है ना? क्योंकि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मर चुके हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी के सारे पुत्र मर चुके हैं, सिर्फ वो लोग और रह रहे हैं वही वहीं पर, है ना? बट दे आर स्टिल अटैच्ड टू द फैमिली अफेयर्स. तो 18 to 28, we are in number 26. From 18 to 28, Vidur starts chastising Dhritarashtra, क्योंकि he only came to Hastinapur to deliver his brother, you know, Dhritarashtra. So he came and started chastising. You know, before this, he said a lot of incredible, he said a lot of incredible things. अभी मैं बताता हूँ, like, I'll show you. तो between 18 and 28, यहाँ से उन्होंने बोला है कि वो क्या बोल रहे हैं? You have been blind from your very birth, and recently you have become hard of hearing as well. Your memory is shortened, your intelligence is disturbed, your teeth are loose, your liver is defective, you're coughing up mucus. And how powerful are the hopes of living being to continue his life? Verily, you are living just like a household dog and are eating remnants of food given by Bhima. He said Bhima because Bhima has killed all his sons. Everyone died from Bhima. Bhima killed every single Kaurav brothers. So Vidura is calling Dhritarashtra that you are living like a household dog, eating remnants of food given by Bhima. है ना? फिर कह रहे हैं there is no need to live degraded life and subsist in charity of those whom you tried to kill by arson, poisoning. You also insulted their married wife and usurped their kingdom and wealth. एंड देन लास्ट क्लास में प्रभु समझा रहे थे आप लोगों को, डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस टू डाई एंड यू डिजायर टू लिव इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज, योर माइजरली बॉडी विल सर्टेनली dwindle and deteriorate like an old garment. है ना? तो आज के वर्स में ही saying वो पर्सन the person is called undisturbed, who goes to an unknown remote place and freed from all obligations, quits his material body when it is become useless. And then आगे next में वो बोलेगा कि you know you should leave, and you should leave home and depend fully on the personality of Godhead. He's asking him to take vanaprastha. फिर क्या बोलते हैं, प्लीज गेट आउट ऑफ हेयर एंड गो टू नॉर्थ. फिर क्या होगा, महाराज धृतराष्ट्र, and he will start, he understand सब कुछ. Now he started understanding कि मेरा जो भाई है वो सच बोल रहा है. And then Gandhari goes with him and all those sort of things. So today we will focus on this one. Gatastvartham mimam deham virakto mukti vandana avigyate gatir jarhat save dhira udahrata. Anybody likes to read the purport, please? Hare Krishna, Prabhu. Can Yes, I Mataji, start, please. Prabhu? Please. Can you hold on, Prabhu? I've got the Bhagavatam. It's just upstairs. I'll be back in just 1 minute. Okay, no issues. Yeah, because it's better to read it from the book directly rather. Okay. We attend these morning sessions, right? So it's upstairs and downstairs. No, that's okay. It won't take long. Do you attend Ojasvi Prabhu's class? No, Prabhu. Chaturmas we started. Okay. Yeah, Kaushal Prabhu is taking it. Kaushal and Prabhu. Okay. Very Yeah. nice. And it's daily? Yes, every weekday, Prabhu. Every weekday. Oh, very nice. Yeah. Once we took on the Bhadra Purnima, we took Sunday class, I think. Okay. And then on Bhadra Purnima, we came together at somebody's house and we did like 6 hours at a stretch. Oh, beautiful. Sorry. Incredible. Can you remind me again which? So 1, 13, 26. 26. Perfect. I was there. Purport. Hare Krishna. Yes, Srila Prabhupada. Jai. Jai. Narottam Dasa Thakur, a great devotee and acharya of the Gaudiya Vaishnava sect, has sung, My Lord, I have simply wasted my life, having obtained the human body. I have neglected to worship your lordship, and therefore I have willingly drunk poison. In other words, the human body is especially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord.
without which life becomes full of anxieties and miserable conditions. Therefore, one who has spoiled his life sorry, without such a cultural activities is advised to leave home without knowledge of friends and relatives, and being thus freed from all obligations of family, society, country, etc., give up the body at some unknown destination so that others may not know where and how he has met his death. Dhira means one who is not disturbed, even when there is sufficient provocation. One cannot give up a comfortable family life due to his affectionate relation with wife and children. Self realization is obstructed by such undue affection for family. And if anyone is at all able to forget such a relation, he is called undisturbed or dhira. This is, however, the path of renunciation based on a frustrated life. But a stabilization of such renunciation is possible only by association with bona fide saints and self realized souls by which one can be engaged in the loving devotional service of the Lord. Sincere surrender onto the Sincere surrender onto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service. This is made possible by association with the pure devotees of the Lord. Dhritarashtra was lucky enough to have a brother whose very associate was a source of liberation for this frustrated life. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, so now I'm gonna bring this. Has anyone heard this song, Narottam Das Thakur's song, Hari Hari Vipile? I'm pretty sure you would. Some of you would Yes, have Guru. heard this. है ना? हरि हरि विफले जन्म हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु है ना कहते हैं मनुष्य जन्म मिला है ना फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं करा इसका क्या मतलब है हमने जानबूझ के जहर खाया गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना तो ये बहुत ही अच्छा भजन है ना इन इसके जो फर्स्ट वो है उसमें यही बोलते हैं आई स्पेंड माई लाइफ नरोत्तम दास ठाकुर इज अ प्योर डिवोटी ही इज सेइंग ओ लॉर्ड हरि आई हैव स्पेंट माई लाइफ यूजलेसली having obtained a human birth and having not worshipped Radha Krishna, I have knowingly drunk poison. And that's what Srila Prabhupada is quoting here. You know? My Lord, I have simply wasted my life. So, in other words, the human body is specially meant to cultivating knowledge of devotion service of Lord, without which life becomes full of anxiety and miserable conditions. You know. अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? So this is actually our condition. To be honest, our condition is where we are in the human body, but we have so many other indulgences, except for cultivating knowledge of devotion service. And I was talking to someone the other day, and we were discussing, what is the purpose of human body? Human body ka purpose kya hai? Somebody was asking ki, Brijesh, I don't feel like doing anything. I'm just trying to understand what is the purpose. लो सुबह सुबह उठो ऑफिस जाओ वापस घर आओ पैसा पूरे साल मेहनत करो एक महीना घूमने जाओ सारा खत्म कर दो फिर वापस पूरे साल मेहनत करो फिर उसमें एक महीने के लिए there must be something more than that. And I think I congratulated him and I said, look, this is a very good thinking because there are not many people who think like that. कि what is the purpose of life? Purpose of life is not to eat, drink and be merry. That's वो हम लोग हर जगह वही देखते हैं सोशल मीडिया में सब जगह. So शिला प्रभुपाद कहते हैं कि the human body is specially meant for cultivating knowledge about devotion service of the Lord. Now problem क्या है कि is there a lack of knowledge? There is no lack of knowledge. Knowledge is everywhere. I mean, there is no dearth of knowledge. There is, you can go chat GPT. You can do a lot of different stuff. And trust me, it is not.
it's not hard to get to get knowledge. The problem is इतनी ज्यादा knowledge है इंटरनेट पे कि if I say, if you type in, my friend was typing, he was saying that he wanted to read something about uh, old Indian history, and Devdutt Patnaik came into the search. And if you read Devdutt Patnaik, he does not, he has उसके जो references हैं, all they're all, you know um, how do I say, he has not understood the purpose of Vedas. For him, Vedas is something which is very interesting and entertaining, and he is busy trying to find out controversies in our scriptures. But the purpose of purpose of our scriptures is um, not to find contradictions. It's to actually grow as a person. It's not an entertainment book. It's not, agar aap entertainment chahiye, there are a lot of other entertainment thing you can do. But this is for us. This teaches us the purpose of life. लेकिन उसमें भी क्या है, इतनी सारी चीजें हैं. If we don't hear the right thing from a right person, even that is dangerous. If somebody is not following the mood of bhakti, अगर वो भगवत गीता भी पढ़ के सुना रहा है, उसके मुंह से हम सुनेंगे, even that will not help us, because knowledge is actually subtle. Knowledge is not gross. अगर मैं आपको बताता हूँ कि the capital of Denmark is Copenhagen. Now, if I tell you this is a gross knowledge, है ना. Subtle knowledge is when I tell you that when we grow old, we need to ponder over the purpose of life, and you ask me, and why is that, why am I not asking for that purpose? That knowledge that I've given you is subtle knowledge, because वो जो subtle knowledge है वो सब जगह है. Everywhere we read, we are not this body, we are the spirit soul. लेकिन that same sentence, we are not this body, we are the spirit soul, lands differently to different people based on their mentality, based on their consciousness. Now, and then this guy was the same person was saying that he has read Bhagavad Gita already, है ना. तो मैंने उसको बोला कौन सी भगवत गीता पढ़ी है. And then he said he has read both Gita Press वाली भी, और he has read Bhagavad Gita as it is भी. तो फिर मैंने उसको बोला, तो इफ यू हैव रेड इट, व्हाट हैव यू हैड एनी चेंजेस इन योर lifestyle by reading that? He said no. He said nothing, no changes. Then I said to him that our scriptures are actually revealed scriptures. हमारे जो वेद वगैरह है ना, वेद, देयर इज अ वर्स इन भगवत गीता व्हिच सेज वेदा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम. भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, आई एम एवरीवेयर, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, है ना. एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, है ना. फिर उसके बाद कहते हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञान अपोनम च, नहीं सॉरी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहम, एवरी वंस हार्ट आई रिसाइड इन. हृदय सन्निविष्टो, मैं बैठा हूँ, और मैं क्योंकि उनके हृदय में क्या बैठा हूं, इसलिए मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, ऑल थ्री कम्स फ्रॉम मी. भगवान कहते हैं. फिर बोलते हैं वो, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में मैं ही वेदा हूं, और मैं ही वेदांत कृत वेदविद एव च अहम, सब कुछ मैं ही हूं, मैंने ही लिखा है, मैं ही वेदा हूं, और मेरे द्वारा ही बनाया गया है वेदास. अब क्या हो रहा है, वेद जो पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग वेद पढ़ रहे हैं, देवदत्त पटनायक भी वेद पढ़ रहा है ना. देर आर लॉट ऑफ अदर सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, दे वो लोग भी पढ़ रहे हैं स्क्रिप्चर्स. लेकिन सबका अलग अलग कंक्लूजन क्यों निकल रहा है? उसका रीजन ये है कि पहली चीज तो दे आर नॉट रीडिंग थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम द डिसिप्लिक सक्सेशन. And even if you are reading things from the disciplic succession, they don't have anyone who they can actually ask for more understanding of how do I understand this. दूसरा और तीसरा क्या होता है कि because their consciousness is whatever their consciousness is,
they will actually get only that much. The Vedas or the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam will only reveal to them based on their consciousness. That is why हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारे सारे शास्त्र हैं वो तीन मोड्स में हैं। मतलब सारे शास्त्र नहीं, वेद जो है सद्गुण रजगुण तमोगुण, इन तीन मोड्स में है वो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग तीन मोड्स में हैं। और क्या होता है, जिस मोड में हम लोग होते हैं, जिस कॉन्शियसनेस में हम लोग होते हैं, वो वेद हमें उतना ही रिवील करके दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना। इसीलिए व्हाट वी डू इज व्हेन वी रीड श्रीमद भगवद गीता, अभी मैं व्हेन आई वाज इन प्लेन आई वाज रीडिंग भगवद गीता एंड आई थिंक आई वाज रीडिंग वन ऑफ द वर्सेस इन चैप्टर 13, एंड आई वाज थिंकिंग यार मैंने भक्ति शास्त्री एग्जाम भी दिया है, ये इसको दो तीन बार पढ़ा भी है, लेकिन वो वर्स तो मेरे को याद ही नहीं था। अब आई थॉट दैट आई हैव नेवर रेड दैट वर्स बिफोर, एंड देन सडनली आई वाज क्वेश्चनिंग कि यार ये क्या हो रहा है, एंड देन सडनली इट केम टू मी, हाँ यू नो इट्स बेस्ड ऑन माय कॉन्शियसनेस। So every time we read Bhagavatam, every time we read Bhagavad Gita, we will only grasp to a degree of where our consciousness is, ना। इसीलिए ना कई बार कहते हैं, और ये ना सिर्फ स्क्रिप्चर्स में नहीं होता है, मैंने जनरल लाइफ में यही होता है, यू नो। अगर यू नो इफ टीचर है, It's called टीचर, selective listening, Prabhuji. दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इवन टीचर्स व्हेन दे आर मार्किंग देयर पेपर ना, तो हम लोग बोलते थे कि यार आज यार देखो इतना अच्छा आंसर लिखा है, टीचर ने एक मार्क्स ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैं भी अपनी बीवी से लड़के आया होगा है ना, उस दिन जब मेरा पेपर मार्क कर रहा है, तो उस समय उसकी क्या कॉन्शियसनेस थी, उतने नंबर उसने मुझे दे दिए। मतलब वी यूज्ड टू टॉक लाइक इन जोकिंग वाइज, वी टॉक लाइक दैट, बट दिस इज ट्रू। सो नाउ ह्यूमन बॉडी इज स्पेशली मेंट फॉर कल्टिवेटिंग नॉलेज। अब नॉलेज इज सटल, तो नॉलेज इज सटल, एंड अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगी तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, विदाउट विच लाइफ बिकम्स फुल ऑफ एंजाइटी एंड मिजरेबल कंडीशन। सो हम लोगों को सिंपल सा एक टेस्ट है, हमारी लाइफ में एंजाइटी और मिजरेबल कंडीशंस हैं? अगर यस, देन वी डोंट अंडरस्टैंड डिवोशनल सर्विस, वी आर नॉट यूजिंग आवर टाइम टू कल्टिवेट इनफ डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। नाउ अब इसके बाद रिजल्ट भी क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद, क्या होता है, आज इसका सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। जो ऐसे लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए? Is advised to leave home without knowledge of friends and relatives, and being thus freed from obligation of family society, give up the body as some unknown destination and meet their death. अभी ये किसी को पढ़ा दो आप यहाँ पर, है ना। देव से कौन हो यार तुम लोग, ये क्या है, मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम लोग इतने, somebody was telling me as well, तुम लोग कितने मोरोस हो, कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई खान पान ऐसा नहीं, हर चीज में रेस्ट्रिक्शन, कैसे जी, why are you even alive? I mean this, that's what they were saying. So so कहने का मतलब ये है कि this is what people have to do. Someone who is not using it, this is what they should do, this is the remedy, है ना। Now this is what Srila Prabhupada is. We need to understand the mood of Srila Prabhupada. Na? Mood of Srila Prabhupada is, we have to understand that family, society, country, relatives, these are all upadhis. है ना? एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन जो हम इस भगवत गीता के बाद पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम में काफी सारे रेफरेंस आएंगे उसके। श्रीमद् देयर इज अ बुक कॉल्ड नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उसका एक श्लोक है, उसी का ही है क्या, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम, है ना। अब क्या होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां जो हमारी है ना, कि मैं कौन हूं, आई एम ए हस्बैंड, सन, uncle, brother, I'm, employee, boss. All of these upadhis that we have, they are just upadhis. They are not who I am. है ना? So इसका मतलब क्या है? We need to make sure that we are not at all bewildered or fluctuate because of these things. It doesn't mean that you go and meet your death. That's not technically it means. It means that ये जो obligations होती है ना, family, society, country, we should be धीरा, वो आगे बोलेंगे। धीरा means one who is not disturbed even when there is a sufficient provocation. Now, if you want to check whether you're dhira or not, say something bad to your spouse and then wait for them to blast you. And you say, I'm Dhira. And if you can,
for a longer period of time, you can actually become stay undisturbed. Then you can call yourself धीरा, otherwise you're not, है ना? अब हम लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं अपनी कंफर्टेबल फैमिली? we cannot give up comfortable family life due to this affectionate relationship, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है। अब ऐसा नहीं है कि बिकॉज शिला प्रभुपाद यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं वी शुड स्टॉप लविंग आवर रिलेशनशिप रिलेटिव्स, है ना? वी शुड नॉट स्टॉप लविंग आवर स्पाउस, आवर चिल्ड्रन, what he's talking about is he's talking about in the reference of Dhritarashtra. Dhritarashtra was so blind in the love of his kids कि उसके बेटे ने पहले उनको जहर पिलवाया, लाक्षागृह में मरवाने की कोशिश करी, लेकिन उसने ना, धृतराष्ट्र को सब कुछ पता था लेकिन उसने मना नहीं करा। फिर जब चीरहरण हो रहा था फिर भी उसने मना नहीं करा, ठीक है? और उसके बाद जब वो सब मर गए, तब उसको समझ में आया कि यार मैंने जो जो मैंने करा गलत। वो भी नहीं, अभी भी नहीं समझे हैं, बाद में समझेंगे अभी, है ना? तो अब वो अपने बच्चों के प्यार में इतने अंधे थे कि ही नेवर सॉ एनी मिस्टेक इन देम। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लाइंड लव होता है ना, ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड, इरेशनल, जो हमारी बॉलीवुड मूवीज में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, दैट इज नॉट वेरी वेरी गुड, बिकॉज आसक्ति, देर इज अ डिफरेंस। कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड आसक्ति? व्हाट इज द डिफरेंस प्रेम और आसक्ति? Prabhuji, attached and detached. सो प्रेम, सो आसक्ति में व्हाट इज द अटैचमेंट इन आसक्ति? Asakti is attachment. Basically, you continue to expect in return. यस, दैट्स करेक्ट, दैट इज यस, मतलब एब्सोल्युटली राइट। प्रेम में आप एक्सपेक्टेशंस नहीं। नहीं होती तो यस। प्रेम में भी है, सच बताऊं तो प्रभु जी। But you're not supposed to have it. That's the That's true. So yeah, very, very nice. Even I don't have it. So you're right. So आसक्ति और प्रेम। यशी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? यस प्रभु जी, यही कि एक्सपेक्टेशंस जहाँ होती है वहाँ वो ये डिफरेंस होता है हाँ। एक्सपेक्टेशन होना। आप लोगों में से किसी ने पता नहीं, आई शुड नॉट इवन आस्क दिस, बट देयर इज अ मूवी कॉल्ड डर। डर मूवी थी शाहरुख खान की। उसमें यस, शाहरुख खान वाज आसक्त, but I don't know who was the other actor. I can't Sunny even Deol remember. Prabhu. Sunny Deol, सनी हाँ। देओल प्रभु जी, यस। Sunny Deol was in love, but शाहरुख खान was आसक्त। मतलब आसक्ति ऐसी होती है, यू आर सो अटैच टू इट दैट इफ यू डोंट गेट इट यू आर रेडी टू किल और डाई, ready to kill. So you have no rational thoughts, there is no moral in your thing. The only desire you have is I want this by hook or crook. That is called asakti. Love is I love this. I love this person, so what I'll do is I'll do anything and everything that makes this person happy. So there is still an expectation to have that person happy, but there is no attachment to it. Like, if I get this person, it's okay. If I don't, because, they love someone else, so be it. That's called real love. So love and asakti. So ये जो धृतराष्ट्र है, इसको अपने बच्चे से आसक्ति थी। और कैसी आसक्ति? और सिर्फ, अच्छा, सिर्फ बच्चे से आसक्ति नहीं थी, उसको इस जो राजगद्दी है उससे भी आसक्ति थी। तभी तो बच्चे तो मर गए अब, एवरीवन डाइड, फिर भी ही इज स्टिल देयर, क्योंकि वहां पर अभी भी उसको राजा की तरह रखा जाता है। ही वॉज ट्रीटेड एज अ किंग, एवरी डे युधिष्ठिर महाराज विल कम इन द मॉर्निंग, उनके पांव छुएंगे, उनसे पूछेंगे आप कैसे हो, उनके लिए मेकिंग श्योर दैट ही इज गेटिंग ऑल द comforts and everything. So he was still asakt. Dhritarashtra was still asakt. और शिला प्रभुपाद जब बता रहे हैं ना कि one cannot give up comfortable family life due to affectionate relation with wife and children, and in this case his rajgaddi as well, है ना? अब ऐसे केस में क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन इन obstructed by such undue affection of the family, and if everyone is able to forget such a relationship, he is called undisturbed and धीरा। अब क्या होता है कि जो immature devotees होते हैं, when they read the Srimad Bhagavatam without the context, जिन्होंने पहले 13 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, they will look at it and say, you know what, affection to the family is rubbish. I don't want to have. I actually personally know one devotee who left his family
एंड ही एक और किराए का घर ले लिया उसने. He has kids like around late teenage, मतलब 18, 19 years old kids. Um, and he left his wife and kids and he started living in an apartment somewhere else. Still talking to them, but say, no, 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 I'm doing my bhakti now, so I don't want to do anything with you. Now he was like, last time when I met him was like around in his early 40s. So ab socho, that is not what Srila Prabhupada is talking about here. Kyunki if I have a wife and if I have a child, it is my responsibility to look after them and make sure they have everything they need. That is my dharma. I cannot in midway until I'm 50, until I'm actually taking vanvas, and vanvas is usually with the wife. I cannot. And if wife says no, I can't. I mean, obviously I can, but my first responsibility is my wife and my kids. लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन अगर टू मच अफेक्शन हो जाता है ना, जैसे हस्बैंड ने बोला वाइफ को, अरे कोई बात नहीं यार, एक दिन चैंटिंग नहीं करेगी क्या फर्क पड़ेगा, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, एक दिन नहीं करेगी क्या फर्क पड़ेगा. नाउ दैट इज वेरी डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस. है ना, उसमें क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन कैन गेट अफेक्टेड. अब अब क्या है, उस केस में व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर दैट यू मेक एंडेवर्स. है ना. एंड अब क्या होता है, दिस इज हाउएवर द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, बट स्टेबलाइजेशन ऑफ सच रिनाउंसिएशन इज पॉसिबल ओनली बाय एसोसिएशन विद बोनाफाइड सेंट्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन रियलाइज सोल्स. अब ये इंपॉर्टेंट है. अब क्या होता है कि जिस फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसने पूरी भगवत गीता पढ़ डाली एज इट इज, ही हैड नो एसोसिएशन विद डिवोटीज, ही हैड नो एसोसिएशन विद सीनियर डिवोटीज, ही डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन, ही डजंट. I don't think he was even reading the Bhagavad Gita to understand anything. So that's why he's still stuck. He's still stuck in the. There is no transformation. Transformation can happen when you read and you have faith. You ask questions. Your faith increases. You start doing chanting. Chanting cleans you, and then you can understand more. And it's a snowball. है ना. So sincere surrender onto the lotus feet of the Lord is possible by awakening. This is very important. Sincere surrender to unto lotus feet of the Lord possible by awakening the transcendental sense of service. This is made possible by association of pure devotees of the Lord. ये कैसे हो सकता है? Only association. And I think I was sharing with some of you guys. मैं चिली जब गया था, I had zero association with devotees. And it actually negatively impacted my quality of my devotional life. I've been doing chanting for probably 11 years. And last 6 years, I've been doing chanting in Brahma Muhurta. But I was there. First 15 days was okay. After that, my Brahma Muhurta was disappeared. And by the end of it, I was chanting just before midnight. So there is a very heavy price when you lose association of devotees. है ना. And here Dhritarashtra is lucky enough कि उसका brother कह रहा है कि you know what, he came there and he is giving him all these instructions. यह स्व नंबर 27, यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रवर्जेत स नरोत्तमः. है ना. स्वकात, ये जो सुकात है, सुकात का मतलब होता है मतलब अपना वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, उद्धार, जग जाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं सुकात. है ना. तो यहाँ पर शिला, एनीबडी वांट्स टू रीड द ट्रांसलेशन? If anybody else is not interested, I can read, Prabhuji. I can read, Prabhuji. Richa Sorry. Mataji, you go. Thank you. go ahead. Okay, just 1 second. थोड़ा zoom करना पड़ेगा. There are 3 classes. नहीं, यहाँ से translation. Oh, sorry, translation. He is certainly a first-class man who awakens and understands, either by himself or for others, the falsity and misery of their material world, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within his heart. Hare Krishna. You can read. Yeah, please.
Okay. There are three classes of transcendentalists, namely the Dhira, or the one who is not disturbed by being away from family association. Two, one in the renounced order of life, a sannyasi by frus- frustrated sentiment, and three, a sincere devotee of the Lord who awakens God consciousness by hearing and chanting and leaves home depending completely on the personality of Godhead who resides in his heart. The idea is that the renounced order of life after a did I get renounced order of Frustrated. life after a frustrated life of sentiment in the material world may be stepping stone on the path of self-realization, but real perfection of the path of liberation is attained when one is practiced to depend fully on the supreme personality of Godhead, who lives in everyone's heart as Paramatma. One may live in the darkest jungle alone out of home, but a steadfast devotee knows very well that he is not alone. The Supreme Personality of Godhead is within him, and he can protect his sincere devotee in any awkward circumstances. One should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality form pastimes, encourage entourage, etc., in association with pure devotees, and this practice will help one awaken God consciousness in proportion to one's sincerity of purpose. One who desires material benefit by such devotional activities can never depend on the supreme, supreme personality of Godhead, although he sits in everyone's heart. Nor does the Lord give any direction to person who worship him for material gain. Such materialistic devotee may be blessed by the Lord with material benefits, but they cannot reach the stage of the first class human being, as above mentioned. There are many examples of such sincere devotees in the history of the world, especially in India, and they are our guides on the path of self realization. Mahatma Vidur is one such great devotee of the Lord, and we should all try to follow in his lotus footstep for self realization. Hare Krishna. Hare Krishna. So this is amazing. Like so that's why it is such an that's why it's called Amala Purana. You know, this literature is called Amala Purana. अमल पुराण का क्या मतलब होता है? इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज. देर इज एक्चुअली नो नॉलेज हायर देन श्रीमद् भागवतम, है ना? एक्चुअली नथिंग. सो अब शिला प्रभुपाद इसमें विदुर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास मैन कौन है? हु अवेकन्स, हु गेट्स अवेकन्ड एंड हु अंडरस्टैंड, या तो खुद ही और फ्रॉम अदर्स, द फॉल्सिटी एंड मिजरी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है. अभी क्या है, हमारी सारे मीडिया हमें ये बता रहे हैं कि नो नो नो, देर इज नथिंग फॉल्स. यू नो, आई वेंट टू हवाई, आई हैड a really good time. That is the only truth. And I am so happy because I travel around the world. But ask them, I met one guy in Chile. He was from, we went on a tour, day tour, and I met this guy. He was from London. And his job, he's a consultant, and his job is to travel all around the world, doing consultancy for a company, big company, you know. So that's his job. So in Chile, he was not coming to travel. He came for work, and then one day he had a day off, so he booked a tour. So I asked him. I said, "You must be really very very amazing, happy person." And he laughed and he said, "No." He said that on the way back, he is going to Denmark. He has to go to Denmark first, then he has to go to South Africa, and then his brothers and sister, they live in Qatar, so he has to go to Qatar, and then finally he will be able to go home to London, to his home. But he said he canceled the last two trips because he's sick of traveling.
So anything that we think amazing, it's actually falsity and misery of this material world. Everything looks rosy until and unless it's served in on our plate. You know, and thus this kind of person who is a first class man thus leaves home and depends fully on personality of Godhead residing within his heart. And that is what, who does it? First class people. We need to become first class people. And Srila Prabhupada starts the purport with there are three kind of transcendentalists. You know what transcendentalists are? Transcendentalists are people who understand that this whole world is rubbish. That's not my true position. Everything is not things are not good here. I my original position is to serve God and I have to be with God. तो तीन तरह के ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन से होते हैं? पहला होता है धीरा, है ना। धीरा वो होता है जो हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय एनी वन ऑफ द फैमिली एसोसिएशन। जैसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं हमारे जो षड गोस्वामीज हैं उसमें, शीला जीव गोस्वामी, ये लोग क्या थे? दे वर लाइक फैमिली पीपल, बट दे वर इन द फैमिली बट दे वर नॉट डिस्टर्ब बाय द फैमिली, है ना। फिर उसके बाद सेकंड होता है वन हु इज रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ सन्यासी। सन्यासी रिनाउंस ऑर्डर बाय फ्रस्ट्रेटेड सेंटिमेंट। वो इतने लोगों ने धोखा दे दिया ना कि अब बोला मेरे को चाहिए नहीं कुछ, आई डोंट वांट एनीथिंग। इतना धोखा खा लिया ना लाइफ में, सन्यासी बन गए उसमें, है। सेकंड टाइप के लोग होते हैं। सारे सन्यासी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन देयर आर सम सन्यासी हु बिकम सन्यासी बिकॉज दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, है ना। And the third one is a sincere devotee of the Lord who awakens God consciousness by hearing and chanting and leaves home depending completely on the personality of Godhead who resides in his heart. अब ये जो पर्सन है ना, a sincere devotee of the Lord, सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, और वो कैसे भगवान को पाना चाहता है? बाय हियरिंग एंड चैंटिंग। एंड ये जो अभी मास मंथ चल रहा है, कार्तिक मंथ, इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन फॉर अस टू जस्ट डू हियरिंग एंड चैंटिंग कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आर कॉन्शियसनेस विल एलिवेट 1000 times बाय द सेम एफर्ट। अगर आप पिछले महीने कर रहे होते हो, अगले महीने करोगे, इट विल डिक्रीज, बट दिस टाइम इज ह्यूज, है ना। अब उसमें फिर लिखा है लीव्स डिपेंडिंग एंड लीव्स होम। अब लीव्स होम लीव्स होम लीव्स होम कितनी बार बोला है ना हमारे शास्त्रों में, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राइट नाउ लिविंग होम का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ के चले जाना। इसका मतलब ये है कि घर में रह के, है ना, घर में रह के धीरा बनना, ऐसा धीर बनना कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़े हमें। कोई हमें बहुत पसंद करता है उससे हमें मजा नहीं आए, कोई हमसे नफरत करता है उससे भी हमें दुख नहीं हो, कोई हमारी कंपनी पसंद करता है तो कोई बात नहीं, नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, है ना। अब क्या है, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं that the idea is that renounced order of life after a frustrated sentiment in the material world may be stepping stone for path of self-realization, but that's not real perfection. What is the real perfection? Real perfection of path of liberation is attained when when one is practiced to depend fully on Supreme Personality of Godhead. Now, this is very simple science, very simple science. Simple science कैसे? भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामि हम। जो जिस लेवल का मेरे को सरेंडर करता है, मैं उस लेवल पे ही उसकी मदद करता हूँ। अभी मैं किसी को बता रहा था, तीन चार दिन पहले, हाँ, किसी को मैं बोल रहा था कि भगवान जितना आप सरेंडर करते हो उतना रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कहता है क्या भगवान क्या सौदागर है? एक हाथ दे दूसरी हाथ ले। मैंने कहा नहीं, वो नहीं है, सौदागर नहीं है। व्हाट इट मेंट बाय इज बिकॉज भगवान नेवर एवर 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 इंटरफेयर्स इन आवर फ्री विल। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें जितनी इच्छा होगी ना, उतनी उसी जिस भाव से तुम मुझे बुलाओगे, मैं उतनी ही भाव से ही आपके पास आऊंगा। जितना आपका सरेंडर है उतनी ही मैं आपकी मदद करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स आता है ना, बिल गेट्स से मैं बोलूंगा बिल गेट्स, मेरे को ना मदर काउ डेयरी के लिए $10 का डोनेशन देना है, आप दे सकते होगे। तो अब बिल गेट से मैं $10 क्यों मांगू यार? बिल गेट से तो मैं सब कुछ मांगूंगा, लेकिन बिल गेट से मैं $10 तभी मांगूंगा जब मैंने क्या करा, मेरे को $100 इकट्ठे करने थे, मैंने $90 कहीं और से कर लिए, तब बिल गेट आया। मैंने बिल गेट को बोला तू भी दे दे, $10 ही तो चाहिए, है ना। तो हम लोग भगवान को भी ऐसे ही करते हैं, यार मैं ना, मेरे भाई भी मेरी हेल्प कर देंगे, मेरी पत्नी भी मेरी हेल्प कर देगी, मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर देंगे, मेरे चाचा ताऊ भी हेल्प कर देंगे। अब यार थोड़ा सा बचा है भगवान, अब आप हेल्प कर दो हमारी। तो भगवान क्या करेंगे? उतनी ही हेल्प करेंगे।
उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन द पर्सन हु इज फुली डिपेंडेंट ऑन हिम, है ना, फिर भगवान कहते हैं कि यार ये मेरे पे डिपेंडेंट है तो मैं खुद आऊंगा, है ना। आप सोचो, प्रहलाद महाराज वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, है ना। 5 साल के बच्चे, ना तो ताकत है ना ही कुछ है, कुछ नहीं है उनके पास, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो पत्थर पिघला दें, ये कर दें वो कर दें, ना ही वेदों को बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बट उनके साथ क्या था, ही वॉज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जब उनको ऊपर से फेंका था, देन नीचे तक गिरने तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार भगवान क्यों करवा रहे हो मुझसे, कोई कोई डिस्कशन नहीं। उनके दिमाग में ये था कि अगर भगवान को चाहिए मैं मरूं तो नो प्रॉब्लम, भगवान को चाहिए मैं जीऊं तो मेरे को कुछ हो नहीं सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, सिंपल। और इतना ज्यादा, और उनको बचाने के लिए भगवान खुद आए। कहां से आए? पिलर तोड़ के आए, है ना। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यशी माता जी, यस, आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पूछिए पूछिए प्लीज, प्रभु जी, पूछिए। अभी जैसे रिसेंटली आप ये कह रहे हैं ना कि हम जो भगवान को जितना हम भक्ति करते हैं उतना, मतलब जैसा हम विश करते हैं वैसे ही भगवान करते हैं, उतने ही हमारी जैसे कि ना रेसिप्रोकेट करते हैं। तो एक बार हम्म। जैसे कि हम चाहते हैं कि हम भक्ति करें लेकिन तब नहीं हो पाती, तो उसके पीछे क्या रीजन? हमारा भाव तो होता है लेकिन फिर हम्म। भी नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ना कि हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली व्हेन वी से कि मैं आपको बोल रहा था कि जितना हमारा भाव नहीं, जितना हमारा सरेंडर होता है, वो सरेंडर वाला भाव की बात कर रहा हूँ। देखो, जब हम लोग, मैं अपना बताता हूँ, आपका तो माता जी आई डोंट नो, बट मेरा बताता हूँ। मैं आई डिपेंड सबसे पहला, इट्स ऑनेस्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भगवान पे डिपेंड रहूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आई वांट टू डिपेंड ऑन मी फर्स्ट। आई वांट टू डिपेंड ऑन यू नो माय फ्रेंड्स, माय वाइफ, माय फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन ओ कहीं से नहीं हो रहा है, तब भगवान की आती है, अच्छा भगवान प्लीज यार मदद कर दो यार, है ना। मतलब जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो भगवान, लेकिन होना क्या चाहिए, इट शुड बी ऑपोजिट। मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जैसे हम लोग भक्ति चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आई वांट टू डू मोर डिवोशन। हम्म। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, तुम जितना डिवोशन करना है करो। नौ प्रपद्यंते का मतलब होता है सरेंडर। और सरेंडर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? आप बताओ, कोई भी, फुल्ली एनीवन। सरेंडर, मतलब फुल्ली सरेंडर, नहीं मतलब नहीं, उसका पूर्ण रूप क्या से मतलब होता समर्पण। है? हाउ डज इट लुक लाइक जब हम पूरी सरेंडर होते हैं, हाउ डज इट लुक लाइक? तो फिर मतलब कोई किसी मतलब कि पूरे उन्हीं पे रहते हैं ना, किसी और से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे ना ही हम। वेरी गुड वेरी गुड, उन्हीं से करेंगे, हाँ। लेकिन थोड़ा सा एक लेवल और। रिचा माता जी, हाँ। आप क्या बोलोगे? प्रभु जी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, बस छोड़ दिया, फ्री फॉल। हाँ, फ्री फॉल भी है, ठीक है, लेकिन हाउ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वन एग्जाम्पल, ठीक है। यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव हम्म। गॉट अ गन, यप। आई पॉइंट एट यू एंड से हैंड्स अप, यू विल हैंड अप, ये दोनों हाथ ऊपर हो जाएंगे। यप। फिर मैं कहता हूँ टर्न अराउंड, व्हाट विल यू डू? यू विल टर्न अराउंड, क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में गन है, एंड जब आपने हाथ उठा दिया, देन यू हैव सरेंडर्ड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर इन दिस कॉन्टेक्स्ट? बेसिकली लूज कंट्रोल, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। Yes, yes. So what you do is you follow instruction as it is. You don't use your brain. You don't use your don't use your क्या बोलते हैं, abilities. Don't use anything. Just follow instructions. That is called surrender. So Yashi Mataji, to answer your question, the reason why we cannot sometimes, including me, हम लोग क्यों नहीं भगवान, हम लोग, हमारे मन में भाव तो बहुत है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन हम भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ब्लाइंडली। भगवान की अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लग जाएं, जिस लेवल का फॉलो हमारा इंस्ट्रक्शन, हम भगवान की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, उस लेवल का भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम लोगों को क्या समझाया जाता था पहले, ओ भाव, भगवान तो भावग्राही है, भाव अच्छा होना चाहिए, भाव तो है हमारा अच्छा, वी आर मोड ऑफ गुडनेस, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, एक्शन, एवरी एक्शन दैट वी डू शुड बी ओनली टू fulfill the desire of Krishna, to follow the instructions of Krishna, and that is called surrender. So, Yashimata, that's the only way. What we can do is, if we want to get better and better at surrender, all we have to do is making sure कि हमारी life में every single thing that is happening in our life, we take it as a prasad of Krishna, कि भगवान
But never forget Krishna. Never forget Krishna, whether we are happy or we are sad, or always read Bhagavatam and follow Bhagavatam's advice. Follow the advice of senior devotees. Follow the advice of acharyas. Follow the advice of Guru. And when we do that, that is called surrender. And when we do that, automatically our devotion will keep increasing because we are not using our mind. अभी हमारा माइंड बहुत खतरनाक है। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, माइंड कहता है यार देख रात को लेट हो गए थे, अभी उठ गई ना हाँ तू या उठ गया एग्जैक्टली। तो मुश्किल हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा तेरा काम, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, सो जा। अब ये क्या हुआ, एंड देन वी हम सो जाते हैं तो हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है, भगवान का इंस्ट्रक्शन है, यू मेक मी योर फर्स्ट प्रायोरिटी देन आई विल मेक यू माय फर्स्ट प्रायोरिटी। सो भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है, इसका मतलब क्या है, नींद से भी ऊपर भगवान को रखना है। अगर हम ये एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो कर कंफर्ट लेंगे। जोन में चले जाते हैं अगर हम, तो वो हम हाँ। सोचते हैं बाकी जब हम पूजा करते हैं हम पूरे डिवोटेड है, मतलब मैं अपना एग्जाम्पल लूं, लेकिन हम हाँ। ये सुबह बहुत जल्दी नहीं उठेंगे, 6 बजे भी कर लेंगे तो पूजा तो उसी भाव से कर रहे हैं। हाँ, ये तो इंस्ट्रक्शन में ये हो जाता है, हाँ ये कि पहले ये चलो घर का काम कर लेते हैं फिर पूजा कर लेंगे। हाँ ये हाँ। वाला है। और फिर यही ना प्रभु जी, वो फिर वही जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा सन्यासी और हाँ। धीर, ये तो गृहस्थ जीवन में आपने बोला प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो सब कुछ बैलेंस। मेरा क्वेश्चन हर बार यही रह रहा है, हम्म। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ, नहीं नहीं, इट्स ए बैलेंस। देखो बैलेंस करना इट्स नॉट इजी। आई एम नॉट, देखो कोई भी भक्ति का कोई भी पार्ट इज नॉट इजी, है ना। एंड वी हैव टू, द सूनर वी अंडरस्टैंड दिस द बेटर इट इज। हमें क्या लगता है कि हमारा जॉब जो है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वी थिंक आवर जॉब इज डिफिकल्ट, बट भक्ति इज मोर डिफिकल्ट। जॉब में क्या है, वी हैव टेंजिबल रिजल्ट, एवरी वीक हमारे हाथ में, या एवरी फोर्टनाइट हमारे हाथ में सैलरी आ जाती है। सो टेंजिबल रिजल्ट है, तो वहां पर हम जो लोग मेहनत करते हैं वो डिफरेंट है। अपनी भक्ति में क्या है, ये जो हम कर रहे हैं इसका फल शायद हमें अगले जन्म में मिले या उसके अगले जन्म में मिले, वी डोंट इवन नो। टेंजिबली कुछ भी नहीं मिलता है, इसीलिए भक्ति हार्ड है। क्योंकि भक्ति में क्या है, फेथ जो है ना, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं भक्ति के वो इतने प्रोफाउंड हैं कि हमारी बिल गेट कोई बोलेगा ना, अभी कोई आके मुझे बोले ब्रजेश आई वांट यू टू लीव योर भक्ति बट बिकम बिल गेट्स राइट नाउ, आई यू विल बी अ बिलियनियर, है ना। इट्स अ वेरी टेम्पटिंग। 5 साल पहले कोई बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी आई वोंट टेक इट। आई वुड नॉट ट्रेड माई पोजिशन विद बिल गेट्स राइट नाउ, नॉट एट ऑल, जीरो। क्योंकि मुझे पता है ये जो ये मतलब मैं $1 मिलियन चवन्नी के लिए क्यों जाने दूं, है ना। भक्ति के मुकाबले $1 बिलियन इज लाइक चवन्नी। सो दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि डिवोटी जो भगवान के भक्त होते हैं बड़े चतुर होते हैं। दैट मीन्स दे विल नॉट ट्रेड देयर भक्ति फॉर एनीथिंग। And where does that come from? It comes from reading Bhagavatam and getting understanding, going looking at life with a शास्त्र चक्षु। शास्त्र के आंखों से हम देख रहे हैं हर पूरी लाइफ को, है ना। तो बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस इससे करना है कि देखो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू लीव आवर कंफर्ट्स फर्स्ट, है ना। तपस्या का क्या मतलब होता है, वॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट देना अपने आप को, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो राइट। उसमें क्या है, अगर आपका 8 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो, अगर आप 7 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे सो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन टू भक्ति। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड एंड लर्न ए स्किल सो दैट यू कैन डू समथिंग जो आप 6 घंटे में करते हो 5 घंटे में करो, ताकि वो जो 1 घंटा है आपके लिए भक्ति में मिल जाए। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। तो आपने क्या करा, अगर आप वो 1 घंटा बचाना चाह रहे हो ताकि आप अच्छे से और अच्छे से चैंटिंग कर सको, तो आपने जो 7 घंटे काम करा है ना, वो 7 घंटे भी भक्ति में चले गए, क्योंकि आपने वो 7 घंटे में मेहनत इसलिए करी है ताकि आपका 1 घंटा बच जाए, उसमें आप एक्स्ट्रा करो। तो वो जो पूरा जो आपने ऑफिस में भी काम करा है, इट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। एंड दैट इज व्हाट कृष्णा लाइक्स। कृष्ण, वी नीड टू कृष्णाइज आवर रूटीन। वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर कि डिवोशनल सर्विस यहां से निकालू वहां से निकालू, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड कृष्णाइज द होल रूटीन दैट वी हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाना भी बना रहा हूं तो आई शुड बी एबल टू मेक खाना इन द मूड कि मैं कृष्णा के लिए बना रहा हूँ। बच्चे भी खाएंगे, है ना, पार्टनर भी खाएगा, बट है कृष्णा के लिए। तो क्या हो गया, वो जो मैं टाइम लगा रहा हूँ इट्स डिवोशनल सर्विस। उसके अलावा अगर चैंटिंग करनी है तो मेक श्योर यू मेक दैट फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर बच्चा बीमार होता है,
रात को 2 बजे भी हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो हर कोई ले जाता है अपने बच्चे उस समय तो हमें नहीं लगता कि यस, यार कल का दिन खराब हो कंसिस्टेंसी जाएगा, नहीं होती, है हाँ। ना, ये कल तो का दिन इसमें खराब हमारे हो जाएगा। इमोशंस, राइट। हाँ, तो वो जो हम्म। भाव है जो हमारे बच्चों के लिए है, जो इमरजेंसी के लिए है, वो अगर भाव हमारे लिए मॉर्निंग साधना के लिए आ जाएगा, तो वो बताएगा भगवान को कि यस वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम बिकॉज वी आर फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन। ओके, मेक सेंस माता प्रभु जी? जी एक क्वेश्चन, यस प्रभु जी, आप थैंक यू पूछो सो पूछो मच। पूछो। एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे अभी प्रहलाद जी की बात कर रहे थे, रिसेंटली हमने मूवी देखी थी, मेरे हस्बैंड को इतना हम्म नॉलेज नहीं है, मैं उनको क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाई। कि हम्म मतलब वो पूछ रहे थे कि जो प्रहलाद महाराज जी थे उनके लिए तो भगवान जी आए थे, तो मैंने यही आंसर दिया कि वो फुल्ली डिवोशन थे, लेकिन जो उससे पहले जो और भक्त थे जो नॉर्मल, जिन पे प्रताड़ित कर रहे थे, वो हाँ कौन थे, हाँ, हाँ हाँ, वो वो जो सेज हिरण्यकश्यप। मुनि तो वगैरह उन, थे, हाँ, हाँ। उनके लिए क्यों नहीं आए भगवान? क्या हाँ, वो तो पूछा सेम नहीं? बात तो है ना मैंने यही इसी। बोला था कि ये फुल्ली डिवोशन हाँ, नहीं थे, मतलब प्रहलाद फुल्ली डिवोशन, यही एक्चुअली, डिफरेंस हुआ। हाँ, हाँ। बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्रहलाद महाराज तो फुली डिपेंडेंट थे, ठीक है, 100% डिपेंडेंट थे। और वो लोग जो थे, देवर ऑल द सेजेस जो इनको प्रताड़ित कर रहे थे उस वक्त, देवर ऑल मिक्स डिवोटीज। मिक्स डिवोटीज मतलब वो तपस्या भी कर रहे हैं और अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं। उन सबको मोक्ष चाहिए था, ठीक है, उन सबको मोक्ष चाहिए था। तो वो क्या करा, उनको मोक्ष कैसे मिला? वाइल दे वर डूइंग यज्ञ, वो हिरण्यकशिपु के लोगों ने उनको जाके गला काट दिया। तो इमेजिन दे वर चैंटिंग द नेम ऑफ विष्णु व्हेन दे डाइड, दे वेंट टू वैकुंठा। सो भगवान एक्चुअली हम्म। पर्सनली नहीं आए, लेकिन फिर भी उनको मुक्ति मिल गई। बिकॉज हाउ डिड दे डाई? दे डाइड विद चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा। जो लोग नहीं मरे चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा, दे एक्चुअली, बिकॉज दे एक्चुअली गॉट दैट बिकॉज ऑफ देयर ओन कार्मिक रिएक्शन, है ना। सो एक तो ये रीजन है। दूसरा क्या है, हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान जो है, भगवान ना कुछ ही लोगों को फेवर करता है ना। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवान इज नॉट पार्शियल एट ऑल, है ना। भगवान 100%, भगवान मुझे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हिरण्यकशिपु को करते हैं, जितना रावण को करते हैं, और जितना कोई पर्सन अभी जेल में बैठा हो, 15 मर्डर करके बैठा है, उसको भी भगवान उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन रेसिप्रोकेशन कितना करते हैं? जितना वो बंदा कर रहा है आपके आपके लिए। जो डिवोटी है, उनका डिवोटी का जो इंस्ट्रक्शन मानने का, भगवान का इंस्ट्रक्शन मानने का भाव है, वो ज्यादा है, तो भगवान ज्यादा इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में। जिन लोगों को भगवान से कुछ लेना देना नहीं चाहिए, भगवान नहीं करते हैं उनका इंटरफेयर। लेकिन उस समय कहना कि भगवान उनकी देख लेख के ये नहीं आए, दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज कुछ आचार्य कहते हैं कि वो जो जितने भी लोग हिरण्याक्ष ने मारे थे, उनको वैसे भी मरना था, ठीक है, उनको वैसे भी मरना था, बिकॉज दैट वाज देयर कार्मिक रिएक्शन, दे हैव टू डाई। सेकेंडली, दे वर पार्ट ऑफ व्हाट? किससे मरे वो? हिरण्यकशिपु से मरे। हिरण्यकशिपु एक्चुअली कौन है? हिरण्यकशिपु इज जय विजय, जय और विजय में से, है ना, जय है वो, भगवान के हाँ परम भक्त जी। हैं वो। सो ऑल ऑफ हम्म। दीज पीपल व्हेन दे डाइड, उसका दो रीजन था। एक तो भगवान ये ने ये भी दर्शा दिया कि देखो, somebody who is like 5 year old who doesn't know anything, if he surrender to me, I personally come। दूसरा ये भी दिखा दिया कि भैया, इट्स अ पास टाइम टू शो अस दिस इज द लेवल ऑफ डिवोशन दैट कृष्णा लव्स। बिकॉज इस इतना डिवोशन होता है तो कृष्णा पर्सनली इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी की फ्री विल है। इट्स अ फ्री विल ऑफ प्रहलाद महाराज की भगवान आए, क्योंकि उन्होंने खुला अपना दरवाजा पूरा खुला छोड़ दिया। हम लोगों ने क्या कर रखा है? दरवाजा पूरा बंद कर रखा है भगवान के लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? हमें बाकी सारी चीजें करनी है, पहले हमें मजे करना है, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो हमने बंद कर रखे दरवाजा। हमारा कंफर्ट है, हमारा ये है। अब फिर क्या होता है, हमें लगता है नहीं नहीं भगवान को ले आते हैं, तो एक छोटा सा छेद कर दिया। अब छेद कराया तो जितना बड़ा छेद होगा उतनी रोशनी अंदर आएगी। और इन्होंने क्या कर रखा है? प्रहलाद महाराज ने पूरा दरवाजा ऐसे खोल रखा है, तो भगवान पूरा आओ आप। तो भगवान के पास पूरी अथॉरिटी थी पूरा इंटरफेयर करने की। हम लोगों ने दे ही नहीं रखी अथॉरिटी भगवान को। जब तक अथॉरिटी नहीं देंगे, भगवान कैसे आएंगे? अथॉरिटी कैसे देंगे हम? बाय इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन 100%। हम लोग क्या करते हैं? 2% कर लेंगे। भगवान देखो, पहले तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं रोज दिया राइट। जलाता हूँ, अभी मत मुझसे बहस करो। अरे हाँ ठीक है, भगवान नहीं बहस कर रहे हैं, और अभी भी भगवान हमारी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस लेवल का इंटरफेयर भगवान कर रहे हैं, वो उतना ही है जितना हम लोग सरेंडर हैं उनके। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग टू मी, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी, नोबडी एल्स। मेक सेंस? यस।
यस प्रभु जी। और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी, सॉरी टाइम हो रहा है, बहुत नहीं, सारे बोले लोगों को बोले। क्वेश्चन ये भी होता है कि जो भी हो रहा है लाइफ में भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, तो वेदर इज राइट और रॉन्ग वी हैव टू नो 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 एक्सेप्ट। नो 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 नो, इट्स नॉट राइट और रॉन्ग, इट्स एक्चुअली सब कुछ भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है। भगवान की मर्जी, भगवान क्या करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, बट भगवान इनिशिएट नहीं करते हैं। अब सपोज मेरी इच्छा है, मैंने किसी को चाकू मारना है, ये भगवान ने नहीं दी है मेरे अंदर इच्छा, चाकू ये मेरी खुद की इच्छा है। लेकिन क्या हुआ, अब जिस बंद सपोज मैंने डिसाइड कर ही लिया चाकू मुझे मारना है, तो भगवान क्या करेंगे, मेरे सामने ऐसे बंदे को लाएंगे जिसकी डेस्टिनी ऐसी होगी कि वो चाकू से मरने वाला है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। तो भगवान ने सैंक्शन कर दिया, मेरी जो इच्छा थी उसको सैंक्शन कर दिया भगवान ने, बेस्ड ऑन माई कर्मा एंड द पर्सन जिसको मैं मार रहा हूँ उसके कर्म, है ना। अगर सामने वाले का जिसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ उसके कर्म में चाकू से मरना नहीं लिखा होगा, तो मैं कितनी भी कोशिश करूं मार ही नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जब लोग बोलते हैं ना कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, भगवान की सैंक्शन से सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान ने इनिशिएट कुछ भी नहीं करा है। भगवान डज नॉट इनिशिएट एनीथिंग हमारी लाइफ में। भगवान ने कुछ इनिशिएशन नहीं करा है। भगवान क्या करते हैं, भगवान इज नाउ हेयर ऑन, ही ओनली इंटरफेयर्स हमारी हमारे हम लोग क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। हमारी डिजायर पे भगवान कोई अपना हक, भगवान का कोई हक नहीं है उस पे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी डिजायर को कभी कंटेमिनेट नहीं करूंगा, दैट मीन्स मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझे डिजायर करो। क्योंकि प्यार में यही होता है ना कि जबरदस्ती किसी को सम्मोहित करके थोड़े प्यार करा जाता है। भैया तुम्हारी फ्री विल है, यू वांट टू लव मी, यू लव मी, दैट्स व्हाट भगवान हैज डन। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं, उसके बाद ही चीज होती है। लेकिन जो इनिशिएट इनिशिएट करना होता है वो हमारी डिजायर होती है। तो किसी ने हिरोशिमा पे बम गिरा दिया, दैट्स नॉट भगवान की कोई मर्जी नहीं थी वो। लेकिन भगवान ने क्या करा, उस समय जब बम गिराया तो ऐसे लोग वहां पर थे जिनका कलेक्टिव कर्मा था कि वो बम से मर जाएंगे, है ना। भगवान ने वो सैंक्शन कर दिया। लेकिन भगवान की, अगर भगवान नहीं चाहते कि वो बम वम गिरे तो नहीं गिर सकता था, क्या गारंटीड है। लेकिन भगवान ने नहीं इनिशिएट करा, भगवान ने इजाजत दे दिया, अच्छा ठीक है बम गिराना ना, लेट्स डू इट, क्योंकि कार्मिक रिएक्शन ऐसे हैं, लेट्स डू इट। नाउ यू डू इट एंड आई विल फैसिलिटेट इट फॉर यू, दैट मींस आई विल मेक श्योर कि वहां पर वही लोग होंगे जो जिनके कर्म ऐसे हैं कि वो बम से मर सकेंगे। सो सब कुछ भगवान की सैंक्शन से हो रहा है, लेकिन भगवान नहीं करवा रहे हैं सब कुछ। भगवान सिर्फ इजाजत दे रहे हैं और मटेरियल एनर्जी सब कुछ करवा रही है। तो मीन्स जो आप जब गलत भक्ति काम, में होते हैं तो आपकी बुद्धि बुद्धि अच्छी हो जाएगी। जैसे कहते यस हैं दैट इज विनाश काले करेक्ट, विपरीत बुद्धि। दैट इज करेक्ट। सो तो वेरी नाइस, मीन्स वेरी अगर आप नाइस। भक्ति से हैं या फिर आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड हैं, तो आपका मतलब आपको अच्छी बुद्धि, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब आपका स्ट्रांग होगा और करेक्ट इनपुट करेक्ट वे में होगा। इफ वी बिल्कुल कैन सही, से दिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे सही, कहते हैं दिस इज जैसा अन्न एग्जैक्टली राइट, वैसा मन, उस तरीके से। ओके। दैट इज करेक्ट। परफेक्ट माता या जी, परफेक्ट। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, वेरी वेरी नाइस। ये क्वेश्चंस आपने पूछे, दे आर वेरी वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट इट। ओके, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा हरे गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे